Good afternoon, my dear kids. This is Chetan sir. So today I'm going to start the lecture number 14 from units and measurement, which is chapter number 2. ठीक है? And this physics belongs to class 11 NCERT physics. चलो. The concept I'm going to pick today's concept is significant figures. ठीक है? आज हम significant figures को देखेंगे. चलो. Now significant figures का मतलब क्या होता है? Okay, we'll go for the definition. No issue about that. But first of all, we go in general. ठीक है? तो basically, whenever you are writing a number, किसी भी number को आप लिखते हो. Number means what? It's a counting. ठीक है? So counting को इस counting वाले concept को, counting concept को number बोलते हैं हम लोग. क्या बोलते हैं? The counting concept is called as number. And this counting concept can be represented with the symbol use करते हैं counting concept को, and that symbol is nothing but numeral. उसको क्या कहते हैं? symbol को numeral कहते हैं. ठीक है? If it is more than one symbol, that will be called as, ये singular है. ठीक है? symbol. If the symbol is singular, that is numeral. If it is plural, तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हम लोग numerals. ठीक है ना? So this is the difference. ये आपका plural है symbols का, which is more than one. Yeah, we should know these things very much clear. ठीक? तो अभी numeral हो या numerals हो, basically what are these? These are the digits. ये सारे क्या होंगे? Digits होंगे. Means if the digit is single, then it will be called as numeral. ये क्या होगा? Numeral होगा. ठीक है? And if the digit is more than one digit, मतलब more than one digit, then it will be called as numerals. ठीक है ना? क्या मेरी बात क्लियरली समझ में आ रही है? Wait. Okay. Fine. So we all came to know what is the gist behind digit. Digit मतलब single numeral रहता है, and more than one digit mean numerals. ठीक है? So if the group of digits, it is also called as a number, and if it is single digit, it is also called as number. But basically number will be zero or non-zero. Number क्या होता है? या तो zero हो सकता है या non-zero हो सकता है. We'll see that. ठीक है? And that number will be consisted of digits. ठीक है ना? और नंबर को कैसे डिवाइड किया जाएगा? It will be divided into two parts. ठीक है? देखेंगे कैसे. See here, my dear kids. First of all, whenever you are writing number, ठीक है, या तो वो उसमें जीरो हो सकता है, or else it may be containing non-zero. ठीक है? or else दोनों का combination हो सकता है. Number will be like this, right? Fine. Are you getting my point, my dear kids? क्या मेरी बात आपको clearly समझ में आ रही है? Either it may be zero or non-zero, or else combinations of zero and non-zero. ठीक है? चलो. And इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को नंबर कहते हैं, लेकिन नंबर को जब जीरो हो या नॉन जीरो हो या कॉम्बिनेशन हो, इसको दो हिस्सों में हम लोग बांटते हैं. ठीक है? तो कैसे बांटेंगे हम लोग? सिग्निफिकेंट फिगर्स. ठीक है? एंड नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स. ठीक है? ऐसे हम डिवाइड करेंगे. ठीक? एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स कह लो या नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स कह लो, बेसिकली these will be having the combination of what? Of digits as well as decimal point. मतलब decimal point
या रहेगा या ना रहेगा। मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स में भी डेसिमल नंबर्स, ठीक है ना, और नॉन डेसिमल नंबर्स, नॉन डेसिमल नंबर्स। फिर ये नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स सर, दिस में भी डेसिमल नंबर्स, ठीक है, या नॉन डेसिमल नंबर्स, दोनों में कुछ भी हो सकता है। सो लाइक दिस, ऐसा कॉम्बिनेशन रहता है। लेकिन हमको एक चीज पता चला कि कोई भी नंबर जीरो हो या नॉन जीरो हो या कॉम्बिनेशन हो, these will be numbers, we all know that, ठीक है। And say for example, when we are dividing, when we are bifurcating this number in terms of either significant figures या non significant figures, ठीक है। So होता क्या है basically, it will be decimal number हो सकता है या नॉन डेसिमल नंबर हो सकता है। तो दोनों की कैटेगरी सिग्निफिकेंट फिगर्स में भी फिट करती है, नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स में भी फिट करती है, ठीक है। सो आई विल रब दिस। अब डेसिमल नंबर क्या होता है और नॉन डेसिमल नंबर क्या होता है, ये चीज देख लेते हैं। ओके, सो माय डियर किड्स, डेसिमल नंबर वो होता है if any number you are writing, if any number you are writing, say for example 2002 मैंने लिख दिया, so this is called as non decimal number, ये आपका non decimal number है। why it is called as non decimal number? because we are not using any kind of midpoint, midpoint या either decimal point कह लो, कोई भी point हम लोग यहाँ पे इन numbers के बीच में use नहीं कर रहे हैं। so such type of number is called as non, रक्षिता कांबले, it's okay, fine, are you okay? हाँ, so non-decimal number, okay, so non-decimal number means you are not showing any kind of decimal point in between. So say for example if I'm writing 2 point, ठीक है, 002 या 2002.0 और else 20.02 कॉमा लिखो, ठीक है, कोई भी नंबर ले लो इनमें से, और else 0.2002, these are all are डेसिमल नंबर। ये क्या है, ये आपके डेसिमल नंबर है। सो इस तरह के नंबर आइदर these type of number or these type of number, it will be categorized into significant figures or non significant figures, ठीक है। तो ये तो हमें फॉर्मेट पता चल गया कि नंबर्स कैसे होते हैं, एंड वी आर गोइंग टू कैटेगराइज दैट कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन से होते हैं, नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन से होते हैं, ठीक। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द डेफिनेशन, ठीक है। मीनिंग कि सिग्निफिकेंट फिगर्स किसको कहते हैं, द मतलब what is meant by, ये क्वेश्चन आप खुद से पूछ सकते हो, सिग्निफिकेंट फिगर्स, द reliable reliable digits means dependent digits, the reliable digits plus the first uncertain non, और नॉन नहीं कह सकते, द फर्स्ट अनसर्टन, क्योंकि जीरो भी रहते हैं, फर्स्ट अनसर्टन डिजिट इज नोन एज, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। So we are asking question to ourselves that what is meant by significant figures, the reliable digits, ठीक है, the reliable digits plus मतलब एडिशन कर रहे हैं, the first uncertain digit, ठीक है, पहला अनसर्टन डिजिट, मतलब जो कोई भी नंबर ले लो आप, either you take this one या अगर आप ये नंबर ले रहे हो, so this is first one uncertain digit, तो 2000 के पीछे कितना और जुड़ा है, प्लस 002, ठीक है। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, व्हाट वी आर गेटिंग, नॉट डेसिमल पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट यूज नहीं किया गया है। सो सिंपली यू कैन राइट 2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 002 लिखो, ये लिखो, या सिंपली 2 लिखो, दोनों में से कोई दिक्कत नहीं। when you are adding these things, what you are getting 2002. So the first one is uncertain digit, ठीक है, and the reliable digits are these, the remaining
digits are reliable digits. तो हाँ, so this is what is called as significant figures. ठीक है sir, what if we write like this 3.831? Okay, which one is the first one, sir? This one is the first one. Yes, my dear kids, this is what, this is first uncertain digit. ठीक है, फर्स्ट अनसर्टन डिजिट कौन सा? 2, यहाँ पे 3. ठीक है, बाकी के क्या है? रिलायबल डिजिट्स. रिलायबल मतलब डिपेंडेंट डिजिट्स ऑन दैट 3. ठीक है, 3.831. ठीक है, सो व्हाट दीज आर सिग्निफिकेंट फिगर्स. ये आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. क्या मेरी बात आपको क्लियरली समझ में आ रही है बच्चों? सो दिस इज सिग्निफिकेंट फिगर्स. ठीक है, या नाउ ये चीज तो पता चल गया हमें. नाउ लेट मी टेल यू अ न्यू थिंग कि सिग्निफिकेंट फिगर्स में किसी भी डिजिट को अगर हमको ट्रस्टवर्थी कहना है, हाउ वी आर गोइंग टू से दैट. ठीक है, सो another statement I'm going to make, significant figures. ठीक है, significant figures in the measured value. कोई भी क्वांटिटी का हम मेजरमेंट लेते हैं, so after taking that measurement we'll get the reading. ठीक है, so significant figures in the measured value of a physical quantity मतलब किसी भी क्वांटिटी का आप मेजरमेंट ले रहे हो, उससे आपको जो रीडिंग मिल रहा है, टेल द नंबर ऑफ डिजिट्स, है ना, which is trustworthy. मतलब क्या कह रहे हैं हम? समझो कि हमने ऐसे कुछ नंबर लिखे. ठीक है, I have written a number like this, so this is the measurement, say for example. So what they are saying, significant figures क्या है? In the measured value of a physical quantity, जो भी आपकी physical quantity आप unit लगा लो, it depends upon you. Tell the number of digits which is trustworthy. Means इसमें कितने trustworthy digits हैं. So whatever you are taking the readings, कितना exactness है with the true value, and how much which is uncertainty मतलब ना आगे जा, मतलब आगे जा सकते हैं या तो वैल्यू या तो पीछे आ सकता है. ओके, सो ओनली आफ्टर मेकिंग अ राउंडेड ऑफ कंसेप्ट. मेरी बात समझने की कोशिश करो माय डियर किड्स. व्हेन वी डू राउंडेड ऑफ मतलब व्हेनेवर यू यूज्ड टू राइट 2.91, इसको आप कैसे लिखते हो? यू यूज्ड टू राइट 2.9 बाय मेकिंग राउंडेड ऑफ. इसको राउंडेड ऑफ कहते हैं. सो by doing 2.9, sir फिर 1 किधर गया सर आगे का? on the right side of 9, where that 1 has gone, we have made a rounded off. हमने गोल कर दिया उसको. ठीक है, मतलब ये जो 1 है ना, this is not trustworthy, हम ये कह रहे हैं. and which are trustworthy sir? 2 digits, 2.9, this is trustworthy. तो significant figures क्या आपको इंपॉर्टेंस दिलवाता है? the trustworthiness of the digits present inside the number, and whichever the numbers are trustworthy are called as significant figures. उसी को हम important figures कहते हैं, which will be highlighted. ठीक है, तो यही चीज है. This is what they are trying to tell into the statement. क्या ये मेरी बात clearly समझ में आई बच्चों? What I'm trying to say. Say for example, if 2.35, you cannot take it as 2.4. ठीक है, so you should take after making rounded of 2.3. ठीक है ना, या सो दिस इज व्हाट ट्रस्टवर्थीनेस ऑफ दीज 2 डिजिट्स. सो फिर सर 0.05 कहां गया? वो एक अनसर्टेन डिजिट है, मतलब वो आगे भी जा सकता है वैल्यू या पीछे भी आ सकता है. ठीक है, सो डिपेंडिंग अपॉन द रूल्स वी हैव फ्रेम्ड इनटू द सिग्निफिकेंट फिगर्स, हम लोग क्या बना रहे हैं? राउंडेड ऑफ वाला कंसेप्ट को, या राउंडेड ऑफ ट्रस्टवर्थी. सना सागर, आई विल टेक अनदर एग्जांपल. सी लिसन माय डियर किड्स, say for example
you have taken a measurement of length, ठीक है, 1.93 1.93 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको क्या करना है, राउंडेड ऑफ करके एक कंसेप्ट आता है, आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट क्लास, बिकॉज सिग्निफिकेंट फिगर्स में ही ये पूरा क्लास चला जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट कंसेप्ट जो होगा राउंडेड ऑफ होगा ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। सो अबो 9 इट इज, देखो 1.9 के बाद ये जो नंबर है ना 3, दिस इज लाइंग इन बिटवीन 0 to 5, मतलब 5 को क्रॉस नहीं कर रहा है दिस नंबर। सो इफ 3 इज नॉट क्रॉसिंग 5 मींस ये 0 को आके शिफ्ट करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सो व्हेन यू आर राइटिंग 1.90 दिस इज नियरली इक्वल्स टू 1.9। सो व्हेन यू आर मेकिंग राउंडेड ऑफ टू द टू सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब सिर्फ इसको आप राउंडेड ऑफ कर रहे हो, आप इसको टू नहीं कर सकते, मतलब सिंगल सिग्निफिकेंट फिगर्स को राउंडेड ऑफ नहीं कर सकते। दे आर कीपिंग द कंडीशन यू आर टू मेक राउंडेड ऑफ टू द टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आपको 1.9 मिनिमम दो सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको डिजिट रखने ही होंगे वहां पे। इफ दे आर आस्किंग इट टू कीप फॉर ओनली सिंगल सिग्निफिकेंट फिगर, तो तब आप राउंडेड ऑफ क्या करोगे, 1.9 से 2 करोगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां पे वो लोग क्या कह रहे हैं, इन द कंडीशन इन द क्वेश्चन इफ दे विल आस्क टू कीप दिस सिग्निफिकेंट फिगर्स फॉर द टू डिजिट्स, तो उसका राउंडेड ऑफ ऐसे करो और सिग्निफिकेंट फिगर्स दो ही रखो। तो तब आपको क्या करना पड़ेगा, 3 को डिस्कार्ड करना पड़ेगा। यू कैन नॉट टेक दिस एज 1.99 या 1 पॉइंट, बात समझ रहे हो? सो यू शुड टेक 3 शुड शिफ्ट टू द 0, मतलब 3 इज लाइंग इन बिटवीन 0 एंड 5। कैसे? 0.03 मींस 0.02, 0.01, ठीक है, एंड 0.04, 0.05 मींस यहां से यहां तक लाई कर रहा है, इट इज नॉट क्रॉसिंग द मार्क ऑफ 0.05। अगर ये क्रॉस कर जाता है सो यू कैन शिफ्ट दिस नंबर टू व्हाट, बात समझ में आ रही है? 0.09 है तो यहां पे 0.1, यहां पे शिफ्ट करोगे आप 0.1 को, इट विल गेट एडेड अप। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? या 1.97 you can make it as 2, but I'm not going to explain now rounded off का, अभी मैं नहीं बताऊंगा। what I'm saying that the trustworthiness of the digits, तो हम लोग इसका trustworthiness पे बिलीव नहीं करेंगे, मतलब this value may be uncertain, this is not fix, ठीक है, ये exact नहीं है, only the exact will be 1.9, तो हम इसी पे बिलीव करेंगे। so the answer will be 1.9 सेंटीमीटर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? this is what trustworthiness। so when trustworthiness is not present on the 0.03, तो तब क्या बन रहा है, 1.93 सेंटीमीटर become 1.90 सेंटीमीटर, 1.90 centimeter। That 1.90 is, you know, it can be written as nearly or approximately equals to 1.9, तो मैंने 1.9 सेंटीमीटर लिख दिया by making rounded off। तो ये जो है ना, this is what the second statement is telling, significant figures in the measured value of a physical quantity tell the number of digits which is trustworthy, मतलब कौन से वो डिजिट्स हैं जो ट्रस्टवर्थी हैं, और जो ट्रस्टवर्थी नहीं है तो उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको हम डिस्कार्ड कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट दैट स्टेटमेंट इज सेइंग, है ना? क्या मेरी बात क्लियरली समझ में आई बच्चों? नाउ वी विल मूव टू द, इसी स्टेटमेंट के इलेबोरेशन को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे कि द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, मतलब आप देख लो द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं सर, लेकिन ये कितने नंबर्स में होता है, इसका कोई लिमिट है? आर वी डिपिक्टिंग, आर वी शोइंग सिग्निफिकेंट फिगर्स इनटू 2 और 3 डिजिट्स, या बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं? अगर ज्यादा हो सकते हैं तो उसका वो क्या आइडिया देता है? द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स गिव्स एन आइडिया ऑफ एक्यूरेसी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जितने ज्यादा डेसिमल पॉइंट के बाद या डेसिमल point without decimal point, if you're writing the number of digits, it is giving accuracy। वो क्या दे रहा है? accuracy। larger larger the number of significant figures, है ना, the greater the greater is the accuracy।
सी हियर माय डियर किड्स, उसी स्टेटमेंट को उन्होंने इलैबोरेट किया. से फॉर एग्जांपल 1.93. सो इफ दिस इज द मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटी, कोई भी पैरामीटर, से फॉर एग्जांपल सेंटीमीटर वाला पैरामीटर हमने लिया है, ठीक है. नाउ सिंस द रेजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज, यहीं तक आप कर सकते हो, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स या 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स जो भी है. नाउ if you take 1.9314 centimeter, now you are increasing the resolution of the instrument. Now which one is the more accurate parametric measurement of the length? ये वाला बहुत ज्यादा accurate है. Why? Tell me. क्योंकि कितने ज्यादा significant figures होंगे, जितने ज्यादा numbers होंगे, उतना ही ज्यादा accurate आएगा वो digits, वो value, measured value. Okay? Yeah. Now listen up my dear kids, the number of significant figure gives an idea of accuracy. मतलब जितने ज्यादा significant figures होंगे, उसी उसी पे क्या डिपेंड करेगा? Degree of accuracy, idea of accuracy. Large the number of significant figures, the greater is the accuracy. तो significant figures यहाँ पे समझो 1 2 3 4 5. तो 5 क्या है? Significant figures हैं, ठीक है. यहाँ पे कितना है? 3 है. कितना है? 3 significant figures हैं. So which one is the more accurate? The second one is the more accurate. तो आपका जो second वाला फंडा है, ये आपका बहुत ज्यादा accurate है. क्या मेरी बात क्लियरली समझ में आई? या ओके, फाइन. चलो, वी आर गोइंग टू मूव फर्दर. हम आगे बढ़ते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, है ना. अब हम क्या डिस्क्राइब करेंगे? रूल्स ऑफ significant figures. So these are rules, है ना. चलो, now first rule of significant figure क्या कहता है? फर्स्ट रूल आपका all non zero digits in any number are significant. significant का मीनिंग क्या होता है? important means the value should be trustworthy, और हम उसको लिख सकते हैं as a result, ठीक है ना. so where these things are used sir? experimental results में बच्चों, whenever you use to conduct experiments, you are going to take number of readings, true value, measured value, errors, है ना, एब्सोल्यूट एरर्स, मीन एब्सोल्यूट एरर हम लोग फाइंड करते हैं ना. तो वहां पे जो रिजल्ट आता है ना, विदाउट हैविंग एरर, सो उसको हम क्या कहते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं, ठीक है. चलो, सो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स इन एनी नंबर आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये तो पता चल गया. अभी एक काम करते हैं, वी आर गोइंग टू मेक 2 कॉलम्स माय डियर किड्स. 2 कॉलम्स करते हैं. इन वन फर्स्ट कॉलम आई एम गोइंग टू राइट, ठीक है, आई एम गोइंग टू राइट द नंबर. सो नंबर, कोई भी नंबर ले लो, बिकॉज इन एनी नंबर यहां पे बोला गया है. और सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? इन नंबर, संख्या में, ठीक है. सो हियर इफ आई राइट 1 2 3, टेल मी हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इनटू दिस 1 2 3. तो कितने हैं यहाँ पे? 3. सो दिस इज नॉन जीरो डिजिट्स, है ना. सो दिस इज सिग्निफिकेंट फिगर्स. चलो, I'll take another example, 4 3 2 5. How many significant figures are present here? 1 2 3 4, ठीक है. कितने? 4. Yes, 4
significant figures. Is that clear? Fine. Now 5, 6, 7. So what is this? 3 significant figures, है ना? Yes. Now 2. कितने significant figures है बताओ मुझे? Only Parisian. Bhavani. Matta. Priyanka. Very good. Vaishnavi. Very good. What say? Aishwarya. Very good. Aishwarya and Saundarya. Vasudha Rao. Sana Sagar. Understood, sir. Okay. Priyanka Rathod. Raghuveer Bisnal. Rakshita Kamble. ಐಶ್ವರ್ಯ ಮನ್ಗುಳಿ ತಪ್ಪು. ಎರಡು ಇಲ್ರಿ. ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಜಿಟ್ ಅದಾವ ಇಲ್ಲಿ. ಎರಡು ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಡಿಜಿಟ್ ಅದ. ಅಂದ್ರೆ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ? ಒಂದೇ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಈಗ ಎಷ್ಟದಾವ್ ನೋಡ್ರಿ. ಮತ್ತೆ 2 + 2 4 ಅನ್ಬೇಡ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಎಷ್ಟದಾವ್ ಹೇಳ್ರಿ. ಯಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್. 2. सो सिंपल. दिस इज वेरी मच सिंपल, राइट? तो फर्स्ट रूल तो आपको पता चल गया क्या करना है और क्या नहीं करना है. फाइन. वी आर गोइंग टू जंप टू द सेकेंड रूल. ठीक है, ये क्लियर हो गया? आगे बढ़े. चलो. So second rule of significant figures. चलो. Yeah. चलो ये कर लिया. Now what is second rule basically? If the zeros occurring between two non-zero digits, then those are significant. Are you getting my point, my dear kids? If any zeros are present into two non-zero digits are called as significant. Rakshita, non-zero digit are not significant figure. ತಪ್ಪು ಬರೆದಿರ್ ನೋಡ್ರಿ ರಕ್ಷಿತಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನದ ಇಲ್ಲಿ. If the zeros occurring between two non-zero, 2, 3, ये क्या है? दोनों non-zero हैं. अगर इसके बीच में जीरो हो या जीरोज हो, ठीक है, वो क्या होगा? वो भी सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा. बिकॉज नॉन जीरो तो सिग्निफिकेंट होते ही होते हैं. तो 1 और 2 हो गए, फिर ये तीसरा. कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? 3 हो गए, है ना? सो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग सिग्निफिकेंट. क्या मेरी बात क्लियरली समझ में आ रही है? हाँ. माय वॉइस इज ब्रेकिंग, इज इट? चलो वॉइस को ठीक कर देते हैं फिर से. If the zeros occurring between two non-zero ಹೌದಾ? two non-zero ಅಂದ್ರ zero ಇರ್ಲಾರ್ದಂತ ನಂಬರ್ಗಳು 2 and 3. And if zero is 1 either or more than 1, such kind of digits, then those are significant. ನಾ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ? Say for example, I'll make a column. ಆಗಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ರಿ. I'll make a column of that. So we'll see. Listen up, my dear kids. Here is the what? Any number you're taking, कोई भी number, and the significant figures in number. कितने significant figures हैं? ठीक है, चलो कोई भी number, any number. समझो कि मैंने ले लिया 2005. Now tell me how many significant figures are present inside this number. Very good, very good, very nice. Everyone is giving answer. Very nice. कितने हैं? 4. ठीक है ना?
शिफा, ऐश्वर्या, वसुधा राव, ऐश्वर्या मनगुली, रक्षिता कांबळे, वेरी नाइस। ठीक है, चलो अभी मैं क्या करता हूं, आई एम गोइंग टू राइट लाइक दिस 20503। अब बताओ हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर? How many significant figures? Is it 5? पक्का? Very good. क्योंकि when I'm taking this two non-zero digit, I will consider this as a pair. मैं क्या करूंगा, इसको एक पेयर की तरह कंसिडरेशन करूंगा पहले। तो इन बिटवीन दीज टू यू नो नॉन जीरो डिजिट्स एक जीरो है, तो मतलब एक दो तीन, तीनों सिग्निफिकेंट हो गए। एंड व्हेन आई एम टेकिंग दिस वन, ओके, सिंस दिस इज कॉमन, मैं इसको छोड़ देता हूं क्योंकि काउंट ऑलरेडी हमने कर लिया है। बट फॉर द रेफरेंस सेक, टू डिजिट्स आर हियर, 5 एंड 3, इन बिटवीन अगेन एक जीरो है। ठीक है, तो यहां पे देखो, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 2 है। व्हाट सिग्निफिकेंट फिगर्स? 3 + 2 कितना हो गया? 5 हो गया। तो मैं क्या करूंगा, 5 इज द सिग्निफिकेंट फिगर्स, मैं ऐसे लिखूंगा। ठीक है, सो इज इट क्लियर माय डियर किड्स? क्या मेरी बात क्लियरली समझ में आई? सो दिस इज हाउ यू नीड टू डिकोड द सिग्निफिकेंट फिगर्स, कितने नंबर्स हैं। ठीक है ना, चलो। सो नाउ आई एम गोइंग टू मॉडिफाई दिस नंबर, मैं इसको मॉडिफाई करूंगा। नाउ टेल मी हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इनसाइड दिस नंबर। अब बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, फट से। वैष्णवी मठ 5, प्रियंका, ओके, ऐश्वर्या, प्रियंका, वसुधा, ऐश्वर्या, okay, so you peoples are wrong here, no issue. What I said, मैंने आपको क्या बोला था? अनुष्का गुडी, you're also wrong. मैं किसको करेक्ट नहीं बोल रहा हूँ ना, परिजन, you're also wrong. To whom I am not saying wrong, they are correct. Sana Sagar, you're wrong. Bhavani Vanakatti, you're wrong. Priyanka, you're wrong. Vasudha Rao, you're correct. Okay, listen up, my dear kids. What I said, what is the condition? If the zeros occurring between two non-zero digits, देखो यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पे 2 हैं, so zeros are occurring in between these two number. ठीक है, तो so what we can say? We can say that those are significant figures. जो zeros दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में, those are called as significant figures. ठीक है, तो मैंने इस जीरो को सिग्निफिकेंट बोला, इस जीरो को भी सिग्निफिकेंट बोला, एंड रिमेनिंग 3 आर नॉन जीरो, तो वो तो सिग्निफिकेंट हैं ही। ठीक है, सो व्हाट विल बी द आंसर? 5, बिकॉज यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे कुछ नहीं है आगे, सो दिस जीरो इज नॉट एग्जिस्टिंग बिटवीन टू नॉन जीरो, यहाँ पे सिंगल नॉन जीरो है, आगे कोई नंबर नहीं है। इट मींस दैट दिस इज नॉट सिग्निफिकेंट, ये आपका सिग्निफिकेंट नंबर नहीं है, सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं है। ओके, फाइन। सो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर? 5। सर व्हाट इफ अगर मैं इसी नंबर को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लूं, कैसे? आई विल टेल यू। व्हाट इफ सर, अगर हम इसी को मॉडिफाई कर लेते हैं, कैसे? ऐसे, से फॉर एग्जांपल 20503000। अब बताइए सर, व्हाट आई सेड दैट कि यहाँ पे 2 हैं पेयर्स जिसमें 2 जीरोस लाई कर रहे हैं, अगेन 3 नॉन जीरो प्लस 2 zeros which are lying between two non-zero digits, 5 हो गए। but these zeros, यहाँ पे एक जीरो है ना, इसके बाजू में नॉन जीरो नहीं है, अगेन zeros are there, so we are not going to consider these zeros as a significant figures, तो ये क्या हो जाएंगे? नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, है ना? तो और कितना होगा? फिर से 5 ही होगा। am I right? so this is 5. so very much simple, no my dear kids? So this link will be going to get cut within 1 minute. So you have to rejoin with the same link. Okay, fine. Okay. So say for example, if I write like this, अभी इसका बताओ कितना है significant figures? फट से 5. Is that correct? Vasudha Rao, it's 5. It's not 6. See here, यहाँ पे आगे कोई नंबर नहीं है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, नॉन जीरो। इट मीन्स दैट इन दोनों के बीच में 2 जीरो है, जिसको सिग्निफिकेंट फिगर्स बोला जाएगा, एंड 3 नॉन जीरोस। 3 + 2 5, सिंपल। चलो ठीक है। So my dear kids, 2 rules I have explained properly. यहाँ तक कोई? So third rule,
of significant figures. चलो, यहाँ पे मैंने थर्ड रूल बना दिया, ठीक है. Now we are going to see that what is third rule. ठीक, whether the value is a decimal. In the last session I have discussed about decimal and non-decimal, ठीक है. Whether the value is a decimal or non-decimal number, है ना. कोई किसी भी तरह का नंबर हो, all zeros to the left up to the first non zero digit. एक सेकेंड, थोड़ा सा हैंड राइटिंग क्रॉस जा रहा है. ओके, नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, है ना. ठीक है. इज दैट क्लियर माय डियर किड्स? कोई कंफ्यूजन? So what is third rule of significant figures, my dear kids? Whether the value is a decimal or non-decimal number, all zeros to the left up to the first non-zero digit are not significant. ये क्या होता है? ये significant नहीं होता है. Now let me tell you. First of all, we'll mark it out the points. यहाँ पे points को थोड़ा सा mark कर लेते हैं. So they are talking about decimal. ठीक है. Whether the value is decimal, मतलब decimal मतलब 2.003 ऐसा नंबर, ठीक है, जहां पे डेसिमल पॉइंट हो. तो सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में बात करते हैं. वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट नॉन डेसिमल. पहले इसके बारे में बात करेंगे, फिर नॉन डेसिमल जाएंगे. सो डेसिमल नंबर इज हियर, ऑल जीरोस टू द लेफ्ट, मतलब ये नंबर है, ये मेरा ब्लैक हैंड जो दिख रहा है आपको, दिस इज राइट एंड दिस इज लेफ्ट. तो लेफ्ट मैंने नंबर को देखना है on the left hand side, मेरे left hand side means you have to take your reference when you are seeing this number. You have to take your reference on the left hand side of you. आपके हाथ के left hand side में जितने भी all zeros to the left up to the first non zero, मतलब ये वाला आपका first non zero है ना. इसके बाद second non zero कहां पे? 3 है, ठीक है. बट ये डेसिमल नंबर होना चाहिए और इसके लेफ्ट में जितने भी जीरोस आप डाल लो, समझो मैंने डाल दिए इतने. कितने दिख रहे हैं? टेल मी, इज दैट 6 zeros? 6 zeros? कैन आई हैव योर रिस्पॉन्स? काउंट करो, हाउ मेनी zeros? या 6 zeros आर देयर विच आर नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है. ठीक है सर, क्या सिग्निफिकेंट फिगर्स की कैटेगरी में इसका काउंट नहीं आता है सर? यस माय डियर किड्स. सो सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट इनसाइड दिस नंबर. कितने डिजिट्स हैं? बेसिकली 10 डिजिट्स हैं, लेकिन वी आर काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स एज ओनली नॉट 3. प्रियंका राठौड़, यहाँ पे देखो डेसिमल पॉइंट है, ठीक है बच्चे. एंड वी हैव 2 डिजिट्स. वी हैव 2 डिजिट्स. कैसे? नॉन जीरो डिजिट्स, उसके बीच में 2 जीरोस हैं, ठीक है. तो यहाँ पे जो है ना ये डेसिमल पॉइंट इन 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में, तो यहां से लेके यहां तक काउंट करोगे तो कितना मिल रहा है आपको? वी आर गेटिंग 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. इज दैट क्लियर माय डियर किड्स? प्रियंका राठौड़, इज दैट क्लियर? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. सिंपल है, बहुत सिंपल है. ओके, so what about remaining these 6 sir? Since as per the rule they are saying that on the left hand side of the non zero digits, ठीक है, जितने भी zeros रहेंगे all the zeros will be non significant. Okay,
One second, sir. Okay, Parijan, listen up. Read the rule properly. Whether the value is a decimal, मतलब हम सिर्फ डेसिमल के बारे में बात करेंगे, नॉन डेसिमल के बारे में बाद में बात करेंगे. So whether the value is a decimal number, all zeros to the left, up to the left, देखो यहाँ पे to the left, up to the first non zero digit, पहले नॉन जीरो डिजिट, मतलब ये वाला टू के बारे में बात कर रहे हैं. सो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, आपके लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, कितने जीरोस है देखो वहां पे, कितने भी रख लो, 6 रख लो, 10 रख लो, या 1 रख लो, जो भी है, आर नॉट सिग्निफिकेंट. वी आर टॉकिंग दैट दीज आर नॉट सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट नहीं है. मतलब बचे हुए क्या है, बचे हुए सिग्निफिकेंट है. डेसिमल पॉइंट बीच में है, कितने भी नंबर रह लो, दोज आर सिग्निफिकेंट. क्या मेरी बात क्लियरली समझ में आई? परिजन, कैन आई हैव योर रिस्पॉन्स फट से? नाउ द सेम नंबर आई एम गोइंग टू मॉडिफाई इट. मैं सेम नंबर को मॉडिफाई करूंगा. कैसे मॉडिफाई करूंगा? या सी हियर, 6 जीरोस लिख डाले मैंने, ठीक है, 2.003. नाउ आई एम गोइंग टू इंक्रीज द जीरो. नाउ लिसन अप माय डियर किड्स, मैंने जीरो को इंक्रीज करा, ओके, एंड सी हियर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड जो भी नॉन जीरो डिजिट है, ठीक है, नॉन जीरो डिजिट, जितने भी जीरोस रहेंगे, दीज आर कॉल्ड एज व्हाट? नॉट सिग्निफिकेंट. मतलब रिमेनिंग क्या रहेंगे? सिग्निफिकेंट सर, सिग्निफिकेंट. ठीक है, तो क्या इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? 5. 5. ओके, सो लिसन अप माय डियर किड्स, लेट मी टेल यू दिस डेसिमल पॉइंट मैटर्स. डेसिमल पॉइंट मैटर्स. अभी मैं इसी नंबर को मैं थोड़ा अलग तरीके से लिखूंगा. 1 2 3 4 5 6 जीरो लिख डाले, 20030. Now, how many significant figures are present inside this number? ठीक है, इसमें कितने है पता है? I will mark it out with the different color. मैं different color से mark करूंगा, ठीक है. So the significant figures present inside this number is only कितना? 4. 4. सिर्फ 4 है. डेसिमल पॉइंट नहीं है, बट व्हाट आई सेड इन द सेकेंड रूल, जो भी जीरोस रहेंगे, द जीरोस ऑकरिंग इनटू द जीरोस ऑकरिंग, परिजन, यूज द सेकेंड रूल, द जीरोस ऑकरिंग इन बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स. टू नॉन जीरो डिजिट्स कहां पे बताओ बच्चों? टेल मी फट से. 2 एंड 3, इन दोनों के बीच में जो भी जीरोस ऑकर करेंगे वही सिग्निफिकेंट होंगे. तो नॉन जीरो तो सिग्निफिकेंट है ही, राइट? या सो how many significant figures are there? 4. Sir, what about this zero? This is not significant, my dear kids. ये वाला जीरो है ना, ये significant नहीं है, ठीक है. अगर इसको समझा जाए, let me tell you, if I want to take this zero, मतलब इसको थोड़ा सा और खुल के बोला जाए, so I will take this one, 1 0. इसमें कितने significant figures हैं? So after 1 0 is there means क्या रहेगा? Significant figure is 1. If this is 1000 sir, सिग्निफिकेंट फिगर कितना रहेगा? 1. ये तीनों जीरो मैटर नहीं करेंगे. इज दैट क्लियर? सर व्हाट इफ अगर मैं 1000 को ऐसे लिखूं 1.000. नाउ टेल मी सर, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स? हियर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर. क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? या लेकिन ये थोड़ा फोर्थ रूल में आएगा. दिस विल कम इनटू फोर्थ रूल, तो आपको ये फोर्थ रूल में पता चलेगा. सो व्हाई आई एम राइटिंग लाइक दैट, ठीक है. बट वी आर नॉट स्टिल सीन नॉन डेसिमल, है ना? वेदर द वैल्यू इज अ नॉन डेसिमल. नॉन डेसिमल मतलब यही 23. ये आपका कहीं पे भी डेसिमल पॉइंट नहीं है. सर मैं अगर इसके सामने और 4 5 जोड़ लूं, नो इश्यूज. वेदर द वैल्यू इज अ नॉन डेसिमल, ठीक है, मतलब ऐसा कोई भी डेसिमल पॉइंट यूज नहीं करना. नॉन डेसिमल नंबर, ऑल जीरोस टू द लेफ्ट अप टू द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट. मतलब ये वाला है ना, पहला नॉन जीरो डिजिट है, तो इससे पहले अगर मैं 2 जीरोस जोड़ लूं, सो व्हाट इट विल बी कॉल्ड एज, इट इज कॉल्ड एज नॉट सिग्निफिकेंट. मतलब ये सिग्निफिकेंट नहीं है. सो दिस इज नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है. तो व्हाट अबाउट दीज 4 1 सर? कैन वी कॉल दिस एज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स? यस माय डियर किड्स. क्या मेरी बात क्लियरली समझ में आई? एनी कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन? रक्षिता कांबळे, वैष्णवी मठ, परिजैन, प्रियंका राठौड़,
Okay, very nice, very nice. Thank you. No confusion means very nice. Fine. So you got this. मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपको पता चल गया, ठीक है? ये तो क्लियर हो गया, ठीक है? चलो, we'll move to the next page. तो थर्ड रूल का मैं एक दो तीन एग्जांपल पूछूं आपसे. Shall I ask two three examples? तो आप बताओगे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? Only related to examples related to what? Related to थर्ड रूल, है ना? तीसरे रूल से. तो यहां पे क्या रहेगा? नंबर रहेगा, ठीक है? यहां पे क्या रहेगा? सिग्निफिकेंट फिगर्स रहेगा इन नंबर, है ना? तो बताओ मुझे कितने हैं. आई विल आस्क यू. 00007 जेम्स बॉन्ड. बताओ इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? या वेरी गुड वैष्णवी मठ. इट्स 1. क्योंकि ये क्या है? दिस इज दिस डेसिमल नंबर? नॉन डेसिमल नंबर है ना? अगर ये नॉन डेसिमल नंबर है, इट्स ओके प्रियंका, नो इश्यू. ये नॉन डेसिमल नंबर है. ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कितने जीरोस हैं? कितने भी रख लो यार. आप 007 रख रहे हो, 4 जीरो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ये क्या है? बेसिकली नॉन डेसिमल नंबर है, तो सिग्निफिकेंट फिगर तो एक ही आएगा. सर व्हाट इफ वी राइट लाइक दिस 0.00007? मैंने क्या बोला है? ये आपका क्या था? नॉन डेसिमल नंबर था. ये आपका क्या है? डेसिमल नंबर है. सिंपल है. even with the decimal number, if you're having first non-zero digit on the left hand side of that, if all zeros are present, कितने भी zeros रख लो, even if it is decimal number, आपका significant figures वो नहीं होंगे जो left hand side में zeros हैं of the non-zero digit. significant figures कौन से होंगे? only the non-zero digit, ठीक है? कितना? 1. एंड इसी को मैं अगर ऐसे लिख लूं सर, 0.0007 1. How many significant figures are present into this? बताओ फट से बताओ कितने आएंगे? वेरी गुड, इट्स 2, है ना? तो मैं अगर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लूं तो 0.0000701 या 7001. बताओ अभी बताओ कितने हैं? हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर? 4. वेरी गुड, वेरी गुड. क्विक से आंसर आ रहे हैं यार आप लोगों के. वेरी नाइस, थैंक यू. चलो, शैल वी मूव टू द फोर्थ रूल. क्लियर हो गया ये सारा कंसेप्ट, डेसिमल और नॉन डेसिमल का फंडा? Shall I proceed? Yeah. चलो. So fourth rule of significant figures. ठीक है ना? So कुछ बुक्स में 3 दिए गए हैं रूल्स. बाय सिंपली कंबाइनिंग वन इनटू अनदर. उससे क्या होता है? कंफ्यूजन क्रिएट होता है. मैं क्या करता हूँ? मैक्सिमम पॉसिबली आई यूज टू ट्राई दैट ओवर सिंप्लीफाई करना किसी भी चीज को, मतलब बाइफरगेट करके सिंपल बनाना चीजों को. तो मैं 5 रूल्स बनाया हूं, ठीक है? So in some books it is 3, in some books it is 4, in some books it is 5, depending upon. ठीक है? I prefer for 5. स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन नहीं होगा. फोर्थ रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये मैंने बोला था ना, ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द नॉन जीरो डिजिट जीरोस आएंगे, ठीक है? तो देखेंगे क्या है. जीरोस टू द राइट बोल सकते हो आप लोग इस रूल को, ठीक है? छोटे में क्या बोल सकते हो? जीरोस टू द राइट बोल सकते हो. सो लास्ट वाला था थर्ड रूल, वो क्या था? जीरोस टू द लेफ्ट, है ना? So in case of a decimal number, in case of a decimal number, all zeros to the right, to the right
लास्ट नॉन जीरो digit are significant. Significant, full point. They are not significant in the case of a non decimal number. See here, they have bifurcated properly. मतलब इस रूल में क्या bifurcation properly हुआ है? They are bifurcating the number, as I said you in the last session. मैं जो ये पिछले वाला सेशन था ना, तो कुछ हाथ आई थिंक हाफ एन आवर पहले. So I bifurcated the number into two parts. एक आपका decimal number और दूसरा आपका non decimal number. ठीक है, तो कैटेगराइज कर लेते हैं. We are going to categorize decimal and non decimal. दोनों क्या है? Basically these are numbers, है ना? ये दोनों आपके numbers हैं. So in case of a decimal number, all zeros to the right last non-zero digit. Right last non-zero digit. मतलब ऐसा है 0.002 है, फिर बाद में 2 क्या है? दिस इज राइट लास्ट, मतलब राइट हैंड साइड के लास्ट में आपका क्या है ये? दिस इज नॉन जीरो डिजिट. ठीक है, यहां तक आपका क्या रहेगा? सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा. इसके बाद में जो जीरोस आएंगे ना, वट एवर जीरोस, समझो 2 जीरोस मैंने ले लिए. नाउ दिस इज डेसिमल नंबर, ये तो हमको पता है क्योंकि डेसिमल पॉइंट यूज कर रहे हैं हम लोग. वी नो दैट एज पर थर्ड रूल ये नंबर जो है ना, not significant. Okay, and if the right hand side of the non-zero digits are having zeros, तो ये भी क्या है? Not significant. ठीक है, sorry, non-zero digit are significant. It's significant, non-significant नहीं, significant. तो इसको मैं see here, in case of a decimal number, all zeros to the right last non-zero digit are significant. Yeah, ये significant है. So I'm going to count this as a, एक काम करते हैं, इसको लाल कलर से ले लेते हैं. So we can say that, we can highlight that this is significant figures. So क्या मेरी बात clearly समझ में आई बच्चों? I have taken an example. मैंने example कैसे लिया? मैंने लिया 0.00200. So this is non-zero digit. On the means the zeros which are present on the right hand side of the non-zero digits are taken as what? Significant. ये significant करके consider किया जाएगा. अगर ये significance 2 है तो ये कितना है? 1 है. So 1 plus 2 कितना हुआ? 3 हुआ. तो significant figures कितने हुए? 3 हुए. ठीक है ना? Is that clear my dear kids? Yeah. तो अभी मैं थोड़ा सा इसको modify करता हूं. मैं क्या करूंगा? थोड़ा सा इसको modify करूंगा. Right last right non-zero digit of zeros are significant figures. Yes sir. Okay. Yeah, that's what. तो अभी मैं क्या करूंगा? इसी नंबर को थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा. इसको बाद में देख लेते हैं हम लोग. वी आर गोइंग टू सी आफ्टरवर्ड्स नॉन डेसिमल. तो पहले डेसिमल पे ही फोकस करते हैं. सो 0.00, ठीक है ना, 2002. सो नाउ टेल मी हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट? वी हैव कितने हैं? 4 हैं. ठीक है. सो इफ आई मॉडिफाई दिस नंबर, अगर इसी को मॉडिफाई कर लेते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं. ठीक है, अब बताओ कितने हैं? Now tell me how many significant figures are present? Sana Sagar, is it 4? Parijan, you are right. Yeah, very good. Those who are saying 6, it is correct. देखो यहाँ पे जो है ना, ये तो 4 है, लेकिन ये 2 जो है ना, क्योंकि हम डेसिमल नंबर बोल रहे हैं, we are using decimal point here. So by that case, these 2 zeros after क्या हमने रूल बोला है? कौन सा? लास्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है? यहाँ पे 2 है. अगर सर 2 की बजाय 3 होता तो तब भी वही रहता है ना. What we are saying that last non-zero digit
तो उसके बाद में जो भी जीरोस रहेंगे वो सिग्निफिकेंट रहेंगे, ठीक है, क्योंकि डेसिमल नंबर यूज कर रहे हैं। सो 6 इज द सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ दिस नंबर। क्या ये बात क्लियरली समझ में आई? इफ इट इज तो हम नॉन डेसिमल की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। सो वेयर इज द नॉन डेसिमल कंडीशन सर, है ना? नॉन डेसिमल कंडीशन कहां पे बताओ फट से। सो नॉन डेसिमल कंडीशन के लिए दे आर नॉट सिग्निफिकेंट इन द केस ऑफ अ नॉन डेसिमल नंबर। अभी मैं क्या करता हूं बच्चों, आई एम गोइंग टू राइट लाइक दिस, सी हियर 0 0 0 2 double 0. Now tell me how many significant figures are present inside this number? Tell me फट से। Since this is non-decimal, यहाँ पे कहीं पे भी डेसिमल नहीं है। या वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, वैष्णवी मठ, सना सागर, ऐश्वर्या, ऐश्वर्या कोल्लूर, परिजैन। सो दिस इज सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं यहाँ पे? तो सर सिर्फ 1 है ना, क्योंकि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये तो पहला वाला ही रूल है, मतलब हाफ पोर्शन ऑफ द फोर्थ रूल है, जो कि कह रहा है कि क्या, नॉट फोर्थ रूल, थर्ड रूल। So that is zeros present on the left hand side of the non-zero digits. क्या है ये? These are non-significant figures, है ना? But what is this saying? This is, the half portion of the fourth rule. Another half portion. They are not significant in case of non-decimal number. तो ये आपके non-significant figures हैं, ठीक है? तो बचा क्या? सिर्फ 2 बचा। 2 क्या है? It is a non-zero digit. तो significant यही हो गया ना? या सो आई टेक थोड़े और एग्जांपल ले लेते हैं। सो हम लोग क्या चीज के बारे में बात कर रहे थे? दे आर नॉट सिग्निफिकेंट इन द केस ऑफ नॉन डेसिमल नंबर। मतलब इफ द जीरोस आर प्रेजेंट ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट्स, मतलब ऐसे 2 0 0 0 0, सर हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट एज पर फोर्थ रूल? फोर्थ रूल के अनुसार कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे इसमें? दीज आर व्हाट? नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब बचा क्या? सिर्फ ये बचा, तो सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है, सिंस दिस इज अ नॉन डेसिमल नंबर, है ना? चलो, यस, वेरी गुड। शैल वी मूव टू द फिफ्थ रूल माय डियर किड्स? क्लियरली अंडरस्टूड हो गया? चलो परिजन, वेरी गुड। प्रियंका राठौड़, थैंक यू। वैष्णवी मठ, थैंक यू। सो फिफ्थ रूल, फिफ्थ रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वाला है। आपका अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड सही है तो डेफिनेटली ये चीज आप करोगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट माय डियर किड्स? सो दिस इज हैविंग अ बिट कॉम्प्लिकेशन। ये जो फिफ्थ वाला है ना, ये थोड़ा सा आपका दिमाग चकराएगा। वेट, फाइन। सो द फिफ्थ रूल क्या है? इट ऑल टॉक्स अबाउट इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन। मतलब क्या है? जो एक्सपोनेंट वाला नंबर होता है ना, जो आप पावर फॉर्म में लिखते हो, है ना? सो द इट विल बी कंटेनिंग द पावर पोर्शन एज वेल एज द क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल पोर्शन। नॉट हैविंग हैंडराइटिंग प्रॉपरली, ये सही हो रहा है। In exponential notation, the numerical portion gives the number of significant figures, है ना? Is that clear? ये कुछ समझ में आया? Say for example, I'm going to write 1.3 into 10 to the power 2. Now tell me, how many significant figures are present as per the fifth rule?
यहाँ पे जो इसको है ना एक्सपोनेंशियल नोटेशन कहते हैं, ठीक है। द न्यूमेरिकल पोर्शन गिव्स द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, मतलब आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि सिग्निफिकेंट फिगर्स सिर्फ 2 है, ठीक है ना। तो अगर इसको इलैबोरेट करें आप लोग, 1.3 इंटू 100 कितना आएगा बताओ फट से। इज दैट 130? इतना आ रहा है। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं बताओ। मे बी 3, no Parisian. So 130 means what? As I said you that after means if the number is non-decimal number, ये देखो आप यहाँ पे, you just see here my dear kids, this is what non-decimal number, इसमें कोई decimal point है नहीं अभी, ठीक है। So when you write into this form, इसमें से after non-zero last non-zero digit if zeros are present, वो क्या होंगे, वो तो आपके non-significant होंगे, है ना। तो अगर ये नॉन सिग्निफिकेंट होगा तो बचे कितने, सिर्फ 2 बचे। सो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट, है ना। बहुत ही सिंपल है ना। ओके, सो दिस इज विद द प्लस, प्लस पावर साइन। अगर 2 के साथ कुछ नहीं है तो प्लस होता है। ओके, इफ द सेम नंबर इज रिटन इन टर्म्स ऑफ लाइक दिस, ऐसे अगर लिख दिया तो अब कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। सो डायरेक्टली एज पर द रूल यू कैन राइट एज 2, लेकिन अगर इसको सॉल्व कर लिया हमने, सो व्हाट वी आर गेटिंग 1.3 इंटू 1/100, मतलब क्या आएगा ये, टेल मी। दिस इज 0.013। सी हियर, नॉन जीरो डिजिट्स आर प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द नॉन जीरो डिजिट्स। इफ द जीरोस आर प्रेजेंट, ये क्या रहेगा, ये आपके नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स रहेंगे, जीरोस जितने भी हैं, ठीक है। बट द रिमेनिंग इज 2, क्या, सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या मेरी बात क्लियरली समझ में आ रही है? या बहुत सिंपल है ना। चलो थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेट बनाते हैं, ठीक है। आई डोंट नो कॉम्प्लिकेट लगेगा या नहीं लगेगा आपको। 9.86 into 10 to the power 7. Now tell me how many significant figures are present inside this. कितने significant figures हैं? As per rule if we go, कितने आएंगे? 3 significant figures. Am I right my dear kids? Yes. So अभी इसको रिजॉल्व कर लो, देखो कितना आ रहा है। 9.86 into 1 0 0 0 0 0 ये 0, ठीक है। तो अभी मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ रहा है बताओ फट से। 986 मतलब 2 जीरो चले गए, इसके साथ साथ 5 जीरो लिख दो, है ना। बताओ फट से। सो डेसिमल पॉइंट विल बी समवेयर हियर, यहां पे रहेगा, है ना। तो अगर ऐसा है तो इसको आप कैसे लिखोगे बताओ मुझे। 986 अप्रोक्सीमेटली दिस विल बी इक्वल्स टू 5 जीरोस, ठीक है। सो नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट of the number on the right hand side if it is having zeros, so this will be called as non significant figures. मैंने बॉयज को ये होमवर्क दिया है, ओके। सो यहाँ पे तो 3 आ रहा है, अगर यहां से गिनोगे बच्चों, एज आई सेड टू द बॉयज कि ये तो 8 आते हैं या 7 आते हैं, वट एवर आई गेव नंबर टू देम, ठीक है। बट एक्चुअली दीज विल बी नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो कितना आ रहा है यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं। तो देखो ये और ये मैच कर रहा है, सिंपल, क्लियर नो। सो अभी इसी को क्या करो, यू जस्ट राइट 9.86 इंटू 10 to the power -7, अभी इसका बनाओ आप। सो बाय रूल वी आर हैविंग 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स फॉर दिस नंबर। अभी इसको क्या करो, इलैबोरेट करो, कितना आ रहा है बताओ मुझे फट से। सो 986 मतलब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट था, इसको एक नंबर काउंट कर लेते हैं इसके सामने, कितने, 7 मींस 1 2 3 4 5 6 7, तो इसके बाद में डेसिमल पॉइंट यहाँ पे रख लो, ओके। सो वी हैव व्हाट, नॉन जीरो डिजिट्स। तो on the left hand first non-zero digits on the left hand side if we have any number of zeros, such zeros are called as not significant figures. तो significant कितने बन गए, सिर्फ 3 बन गए ना। so 3
सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। तो क्या क्लियर हो गया? ओके, सो we have completed this significant figure concept. Tomorrow we are going to see rounded off figures, my dear kids, ठीक है। So yeah, 9.086 प्रियंका, ये वाला एग्जांपल बोल रहे हो 9.086, so it has 4 significant figures, 4 है ना इसमें, सिंपल है, ठीक है। ओके, एनीहाउ यू ट्राई डिफरेंट नंबर, माय डियर किड्स। गूगल में सर्च मारो, बहुत सारे नंबर्स लो, या खुद के दिमाग से जो लिखना है लिख डालो, और खुद लिखो, खुद टेस्ट करो बाय द रूल। वीडियो को देखो, बार बार देखो, जिससे आपको प्रैक्टिस होगा, यू विल नॉट गेट कंफ्यूज्ड। आई थिंक इन द वीडियो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू प्रॉपरली -1 into 10⁻⁵, ठीक है, यही ना। तो इसको आप कैसे लिखोगे बताओ मुझे फट से, माइनस थोड़ी मैटर करेगा आपके साथ। यू हैव ओनली वन सिग्निफिकेंट फिगर, सिंपल है ना, माइनस थोड़ी मैटर करेगा आपके साथ। या सिंपल, बहुत ही सिंपल है, या नो इश्यूज। थैंक यू कहने की जरूरत नहीं सना सागर। सो इफ यू अंडरस्टूड प्रॉपरली, या परिजन, यू हैव एनी कंफ्यूजन ओवर दिस? रक्षिता, नो, okay, very good. Priyanka, very good. Sana Sagar, fine, nice. So I'm going to conclude this class, okay. Vaishnavi Mat, you have to take the attendance of the students, ठीक है। And if you do like this video, my dear kids, please go and comment into my comment box of this video, which is uploaded into the YouTube channel Physics Indian Professor. So if you like this video, like it, and अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, बुरा लगा तो भी कमेंट कीजिएगा। एंड अगर बहुत अच्छी तरह से समझ में आया तो प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, दोज हु आर नॉट गेटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये वीडियो का लिंक मैं ग्रुप में भेज दूंगा, यू जस्ट शेयर इट and ask your new friends from different college to subscribe my channel Physics Indian Professor, ठीक है। Thank you and Jai Hind, my dear kids.